Hello students. Now today we start our lesson number 5, the snake and the mirror. To hear this topic of the lesson, we get some questions like, do you like to look at yourself in the mirror? What do you think about at such times? Now, have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? Then what do you think it sees? Now, this story is a humorous story about a doctor, a snake and a mirror. So this story is related with a doctor, a snake and a mirror. And this story is written by Wakam Muhammad Bashir. Now what happens in the story? Then, has a snake ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. Now, here one question is asking कि क्या कभी किसी सांप ने आपके शरीर के किसी भाग को चारों ओर से कुंडली मारी है? एक बहुत बड़े काले जिंदा नाग ने। तो ये जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा गया तो हम सभी जितने थे वो सब शांत हो गए। ये क्वेश्चन पूछा था एक होम्योपैथ ने, एक डॉक्टर ने, तो उसने फिर वहां से अपनी कहानी सुनानी शुरू की। Then it was a hot summer night. About 10 o'clock, I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. Now here, कि अब गर्मी का मौसम था तो लगभग 10 बजे हुए थे, तो मैंने रेस्टोरेंट में भोजन किया और अपने कमरे में वापस आ गया। और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसी समय पर ऊपर से एक आवाज़ आई और ये बहुत फैमिलियर साउंड था। इसको कह सकते हैं कि उसके कमरे में बहुत सारे रैट्स थे जो उस कमरे को शेयर करते थे उसके साथ। तो डॉक्टर ने अपनी माचिस की डिब्बी निकाली और मेज पर रखी हुई मिट्टी के तेल से लैंप को जला दिया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड. इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. I had just set up medical practice and my earnings were meager. I had about 60 rupees in my suitcase. Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. Now here, कि घर में बिजली नहीं थी, ये फर्स्ट लाइन से समझ में आता है। तो ये एक छोटा सा कमरा जो था वो किराए का घर था। तो मैंने थोड़े दिन पहले ही डॉक्टरी का काम करना शुरू किया था, तो मेरी जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी और मेरे सूटकेस में लगभग सिर्फ 60 रुपए थे, 60 रुपीज़ थे और कुछ शर्ट्स थी और धोती थी। मेरे पास केवल एक काला कोट था जो मैंने उस समय पहन रखा था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, white shirt and not so white vest and hung them up. I opened the two windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the hall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to around from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the God seemed to have taken time off. Now here, मैंने अपना काला कोट और सफ़ेद शर्ट जो था उसको उतार कर लटका दिया। कमरे में 2 खिड़कियां थी, वो मैंने खोल दी।
वो बाहर का कमरा था जिसकी एक दीवार जो थी वो खुले मैदान के सामने थी, और उसकी छत जो थी वो टाइल लगी हुई थी। छत, टाइल वाली छत आप जानते होंगे, जिसको खपड़े भी हम बोलते हैं। तथा जो छत का कोना था वो दीवार पर रखे बीम के सहारा लिया हुआ था। तो अंदर की छत नहीं थी, वहां पर भी बीम में इधर उधर जो था ये नियमित रूप से चलते हुए रहते थे। चूहे जो थे वो इधर उधर घूमते रहते थे। तो मैंने बिस्तर लगाकर उसे दीवार के पास खींच लिया और मैं लेट गया, पर सो नहीं पाया। फिर मैं उठकर बरामदे में कुछ हवा लेने के लिए गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हवा के देवता ने छुट्टी ले ली है। I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. Now here, मैं वापस अपने कमरे में गया, कुर्सी पर बैठ गया और मैंने मेज के नीचे रखे बक्से को खोला, उसमें से बुक निकाली जिस बुक का नाम था मेटीरिया मेडिका। तो मैंने उसे उस टेबल पर रखकर खोला जिस पर लैंप रखा हुआ था और एक बहुत बड़ा सा मिरर रखा था। तो मिरर में बराबर में एक छोटा सा जो कॉम्ब था वो भी रखा हुआ था। Now one feels tempted to look into a mirror when it is near one. I took a look. In those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. So I was unmarried and I was a doctor. So I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. नाउ अब जब शीशा सामने होता है तो जो भी है उसमें उसको देखने का मन करता है। तो मैंने भी एक बार उसे देखा और उन दिनों थोड़ा भाई मैं सुंदरता का बहुत बड़ा प्रशंसक भी था, इसलिए खुद को सुंदर दिखाने में मेरा विश्वास था। तो मैं अनमैरिड भी था, शादी भी नहीं हुई थी मेरी, और एक डॉक्टर भी था। तो मैं सोचता था कि मुझे थोड़ा सा अपनी उपस्थिति को और अच्छा रखना चाहिए, अपनी प्रेजेंस को। तो मैंने कंघे जो कॉम्ब था उसको उठाकर अपने बालों में चलाया और थोड़ा सा अपनी जो मांग रहती उसको थोड़ा संवार कर ठीक ठाक किया, सीधी करके, जिससे वो बहुत साफ सुथरी लगे। Now again I heard that sound from above. I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustaches to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. तो अब फिर ऊपर से किसी की आवाज़ सुनाई दी उसे। तो उसने अपने चेहरे को फिर से मिरर में देखा और एक डिसीजन लिया कि मैं डेली जो है अपनी दाढ़ी बनाऊंगा जिससे मैं और थोड़ा सुंदर लग सकूं, और पतली पतली मूछें रखूंगा, क्योंकि मैं एक कुंवारा भी हूं और एक डॉक्टर भी हूं। I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face. To look more handsome, I was after all a bachelor and a doctor too, upon top of it. Now, अब फिर से उसने अपने आप को मिरर में देखा और मुस्कुराया। तो इस बार जो मुस्कान थी, जो उसकी स्माइल थी, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। तो उसने फिर से अपने एक डिसीजन लिया कि अब मैं ये जो स्माइल है इसको हमेशा अपने फेस पर रखूँगा, जिससे मैं और सुंदर लग सकूँ, क्योंकि आखिरकार मैं एक कुंवारा था और उससे बढ़कर एक डॉक्टर था। Then again came that noise from above. I got up, paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would marry. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistakes and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. अब फिर से उसके दिमाग में फिर से एक आवाज आई ऊपर से। तो उसने क्या सोचा कि उसने एक जो थी उसकी क्या बोलते हैं सिगरेट थी, उसको सुलगाया और फिर से कमरे में इधर उधर चलने लगा और उसको फिर से एक थॉट आया कि मैं शादी करूंगा
और मैं एक महिला डॉक्टर से शादी करूंगा जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और जिसकी डॉक्टरी जो है वो प्रैक्टिस है वो भी अच्छी चल रही हो। तो उसे ज्यादा उसको मोटा होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक रीजन था कि यदि अगर मुझसे कोई गलती हो गई और मुझे भागना पड़े तो वो मुझे मेरे पीछे भागकर मुझे पकड़ ना सके। नाउ with such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There was no more sounds from the above. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning were simultaneous. Now here what happened कि अब मन में इसी तरह के थॉट्स आ रहे थे और जो टेबल थी उसके पास में चेयर रखी हुई थी तो वहां पर बैठ गया। तो ऊपर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। अचानक से एक साउंड आया जैसे कि कोई रबड़ की ट्यूब जो है वो जमीन पर गिरी हो। तो उसने सोचा कोई चिंता की बात है नहीं, फिर उसने मुड़कर पीछे देखना चाहा। तो जैसे ही वो मुड़ा तो उसने क्या देखा कि एक मोटा सा सांप जो था वो कुर्सी की पीठ पर टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ जो डॉक्टर है उसके कंधे पर आ गया। अब सांप का मेरे ऊपर आना तथा मेरा मुड़ना दोनों ही जो काम थे वो एक ही समय पर हुए। So students, this is the story of the snake and the mirror. So in next video, I explain you the next part of the story. So your homework is to read this lesson.